गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अन अकेडमी एसएससी जेई चैनल, जहां पे आप लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है फॉर द एसएससी जेई प्रिपरेशन। ठीक है, जो लोग मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता दिया है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टीच अबाउट टू लेसंस, जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड द सेकंड चैप्टर वाज शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, if you have any doubts, आप मुझे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और you can message me on the Facebook ID, that is you can search अविनाश कुमार झा, वहाँ पे आप सर्च करके you can message me। मैं आप लोगों को वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स रहेंगे I will try to solve there। अगर ऐसा डाउट रहेगा जो आपको क्लास में डिस्कस करना चाहिए मुझे, तो मैं वहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लूंगा वो डाउट्स। तो you just have to message me, ठीक है, accordingly I will respond। And this is the basic introduction about me. My name is Avinash Kumar and I have secured all India rank 4 in SSC JEE 2017. इसके अलावा GATE I have qualified 3 times with best rank of 225, and 2 times I have been qualified ESE mains, and I BTech from NIT Jaipur। And yes, these are the subjects जो मैं daily deal करता हूँ, that is strength of materials, RCC design, structure, transportation and soil mechanics। And yes, those students who want to go for plus subscription, they can use this code Avinash11, Avinash11, make this a viral, because this code is just like आपके पास number of codes होंगे, but still why you should use my code? The question is why you should use my code? This is just to support me because I am bringing so much of initiative for you। मैं आप लोगों के लिए इतना like I am working so much, क्योंकि मैं जब भी टेस्ट सीरीज वगैरह लेके आता हूँ तो उसके लिए काफी एफर्ट मारना पड़ता है। because जो बच्चे स्पेशल में जुड़े हैं मेरे साथ, they know about me that I have been using my own questions there। ठीक है, तो for making me to initiate those more, you have to use this code particular for the like sake of support। And yes, if you join with this code you will get my personalized guidance। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए थ्रू आउट द प्रिपरेशन, आप मुझे जो है मैसेज करके you can ask me your queries, I will try to solve it out। ठीक है, the main aim is ultimate aim है कि आप लोग जो एम लेके चल रहे हैं वो एम फुलफिल करना। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेन एम इज कि आपको वहां पे सक्सीड करवाना। इज माय एम, इज द एम ऑफ आवर टीम। ठीक है, और उसके लिए जो आपको लगता है कि सर ये मुझको प्रोवाइड कीजिए या फिर ये टेस्ट सीरीज दीजिए, यू जस्ट पिंग मी दोज थिंग्स ऑन माय फेसबुक आईडी, और मैं ट्राई करूंगा कि वो इनिशिएटिव आपके लिए लेके आ जाए। चलिए, What are the benefits of plus subscription? आपको बताया था briefly फटाफट से। There are live classes, English and Hindi batches, crash courses are there, जो जब syllabus finish हो जाएगा then you will require a revision type of crash course। Doubt clearing sessions are there, every fourth class is doubt clearing session। And yes, RIP batches, rank improvement batches, जहाँ पे आप लोगों को 250 to 300 questions in every subjects आपको वहाँ पे करवाए जाएंगे। And yes, weekly tests are there, जहाँ पे आप लोग खुद को self analysis कर सकते हैं और improve कर सकते हैं। And this is the method how you can get a plus subscription। You just have to pick a goal, you have to go to click the get subscription and go for the time period you're opting for। Those who are preparing for SSC JEE, those who are preparing for GATE, those who are preparing for ESE, I will strongly recommend कि आप जाए 12 months के लिए या फिर 24 months के लिए, because you require a long term guidance। ESE के लिए आपको मेंस लिखना है, इंटरव्यू देना है, SSC के लिए आपको मेंस लिखना है, गेट के लिए यू हैव टू क्वालिफाई PSU इंटरव्यूज, एमटेक इंटरव्यूज। तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ गाइडेंस की। एंड इफ यू गो फॉर 12 months, ठीक है, दैट विल बी आई थिंक सफिशिएंट टाइम जिसमें आप सक्सीड हो सकते हैं इजीली। ठीक है, एंड यस, while opting for any subscription, just type this Avinash11 in the referral code and you will get 10% off as well as personalized guidance by me। These are the various payment methods जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप यूज कर सकते हैं। EMI ऑप्शन भी है, जो भी आपको सूट करता है वो आप उस हिसाब से अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, दिस इज द टेलीग्राम पेज जहाँ पे आप लोगों को सारी पीडीएफ अवेलेबल कर दी जाएंगी। एंड दिस इज द फेसबुक पेज जहाँ पे आप लोग जो है आपस में कनेक्ट होके जो भी एग्जाम रिलेटेड इश्यूज है वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी क्वेरी रहेगी जहाँ पे गलती से रिक्वायरमेंट है तो दे विल आंसर यू अकॉर्डिंगली। ओके, चलिए, सो विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3 टुडे। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
आफ्टर 3 चैप्टर्स एज आई प्रॉमिस्ड जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे. फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस 2 वीडियोस आल्सो. जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा नहीं है दे कैन गो थ्रू दैट एंड जस्ट क्लियर योर कांसेप्ट्स. फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके बारे में. चलिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3. चैप्टर 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ब्रीफली कि हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर. व्हाट विल डू इज हमने नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन तो निकाल लिया कि किसी भी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया इन द फर्स्ट चैप्टर. नाउ इफ देयर इज एन ऑब्लिक प्लेन जहां पे किसी एंगल थीटा के ऊपर आपको नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो, चाहे आपको स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और वो क्यों करनी है. आई हैव टोल्ड यू सारी एनालिसिस हम इसीलिए करते हैं दैट यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस फंक्शंस और इन दिस केस स्ट्रेन आल्सो. ठीक है. तो हमको वो वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमको किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमको डिफरेंट केसेस के लिए हमको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस कितना आएगा स्ट्रेन कितना आएगा दैट वी नीड टू कैलकुलेट. ठीक है. उससे पहले एक छोटा सा टर्म होता है दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज. मेनली जो क्वांटिटीज हम देखते हैं in your physics and in like you have studied there are mainly two types जो आप स्टडी करते हैं. that is first one is scalar, the second one is vector. ठीक है. इसके अलावा थर्ड क्वांटिटी एक और होती है that is called tensor quantities. that is called tensor quantities. अभी टेंसर क्वांटिटी क्या होती है. ये वो क्वांटिटीज हैं which have tension like effects. सिंपल एक वर्ड में टेंशन लाइक इफेक्ट्स होगी that are called टेंसर क्वांटिटीज. अब टेंशन लाइक इफेक्ट किस में हो सकती है. आपके मास में हो सकती है, वेट में हो सकता है, स्ट्रेस में हो सकता है. तो ऑल दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटीज. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has tension like effects. which has tension like effects. for example mass, weight, stress etc. इनको बोलते हैं हम टेंसर क्वांटिटीज. ठीक है. ठीक है. एक और पॉइंट आता है इसके अंदर कि व्हाट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस. प्रिंसिपल स्ट्रेस जैसा कि नाम से पता लग रहा है प्रिंसिपल मींस इट विल बी अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. it is maximum or minimum value of stress that can be applied, that can be like calculated in the stress element और जो भी आपकी quantities हैं वहाँ पे. तो what is the principal stress. प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब ये हुआ साफ साफ that it is the maximum or it is the maximum or minimum value of normal stress acting on any plane. किसी भी प्लेन पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस क्या बोल देंगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. ठीक है. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली ये है दैट प्रिंसिपल प्लेन्स जो भी आपकी प्रिंसिपल प्लेन होगी, प्रिंसिपल प्लेन always carry zero shear force. इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए जीरो shear force.
जीरो shear फोर्स। मतलब ये हुआ कि जिस प्लेन पे आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएंगे वहां पे आपके जो शियर स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जिन प्लेन पे जीरो स्ट्रेस शियर स्ट्रेस जनरेट होगा वो प्लेन्स क्या होंगे, प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे। तो मुझे जब भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दैट आई हैव टू कैलकुलेट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस की प्लेन कैलकुलेट करना होगा, तब मैं क्या करूंगा, जीरो शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, जीरो शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लूंगा, जीरो शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले मेनली इसमें दो पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड द सेकंड पार्ट विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल या फिर एनालिटिकल मेथड। न्यूमेरिकल, दो मेथड होते हैं इसके, न्यूमेरिकल पहला मेथड होगा न्यूमेरिकल या फिर एनालिटिकल मेथड एंड द सेकंड वन विल बी ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जिसको हम मोहर सर्कल मेथड भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल या फिर एनालिटिकल मेथड। इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो भी आपको स्ट्रेसेस अप्लाइड है और आपको किसी थीटा के अंदर, किसी थीटा पे आपका कोई प्लेन है, उस पे क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करके उसकी एनालिसिस करेंगे। सिंपल इसके अंदर यही करते हैं, उसकी कंपोनेंट से ब्रेक करके उसकी इक्विलिब्रियम के हिसाब से वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन में अगेन मैं घुसूंगा नहीं। ठीक है, आई विल डायरेक्टली टेल यू द वैल्यूज। ठीक है, कांसेप्ट्स क्या रहते हैं बता दूंगा आपको मैं, डेरिवेशंस में आपको घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड। सो द फर्स्ट केस इन दिस इज केस 1, केस 1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1D स्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1D stress, transformation of 1D stress। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1D स्ट्रेस, 1D स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि वन डायमेंशनल, मतलब एक डायमेंशन के अंदर आपका स्ट्रेस अप्लाइड है। मतलब कुछ इस तरीके से आपके पास मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करना है, जिस पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस आपने अप्लाई कर दिया, दैट इज सिग्मा। आपको किसी भी एंगल थीटा पे आपका कोई प्लेन है, द थीटा इज फ्रॉम वर्टिकल। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब हम थीटा लेंगे दैट विल ऑलवेज फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, इन दैट केस द नॉर्मल स्ट्रेस, मान लीजिए इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस मैंने मान लिया सिग्मा डैश, शियर स्ट्रेस मान लिया मैंने टाउ डैश। ठीक है, तो सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा साइन 2 थीटा बाई 2, sigma sin 2 theta by 2 and tau dash is equals to minus, सॉरी ये टाउ टाउ हो गया आपका, सिग्मा डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा cos स्क्वायर थीटा, अपोजिट हो गया ये, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा cos स्क्वायर थीटा एंड टाउ डैश इज इक्वल टू माइनस सिग्मा sin 2 थीटा बाय, these are the values of sigma dash and tau dash। मतलब किसी भी एंगल थीटा के ऊपर ये वैल्यूज आएंगी आपकी नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। अगर आपके एलिमेंट पे सिर्फ अगर नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एंगल पे कोई प्लेन लूंगा मैं, उसके ऊपर शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। उसके ऊपर शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, क्यों जनरेट होगा, ताकि वो उस डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम जनरेट कर सके एक्स और वाई डायरेक्शन में। and those values are sigma cos per theta is the normal stress and minus sigma sin 2 theta by 2 is the shear stress। Case 2 is transformation of 2D stress system।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2D stress system. Transformation of 2D stress system. ठीक है. In this case 2 is two parts. The first part is principal stresses are given on two planes. Principal stress sigma 1 and sigma 2 are given. अब मेरे पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट है. इसके ऊपर आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मेरे को गिवन है कि क्या वैल्यूज है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की. ठीक है. दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2. ठीक है. अब मुझे किसी भी एंगल थीटा पे कोई प्लेन है फ्रॉम वर्टिकल, थीटा हमेशा वर्टिकल से रहेगा, तो मुझे निकालना है कि वैल्यू क्या रहेगी नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस की. इन दिस केस द सिग्मा एक्स डैश या फिर जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस आएगा सिग्मा एक्स डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 cos 2 थीटा. एंड एक तो आपका आ गया सिग्मा एक्स डैश, एक आपका आएगा सिग्मा वाई डैश, क्योंकि ये 2D स्ट्रेस सिस्टम है. 1D स्ट्रेस सिस्टम में सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेस आया था. इन दिस केस सिग्मा वाई डैश विल बी देयर, क्योंकि हमारे पास सिग्मा एक्स जो ओरिजिनल स्ट्रेस सिस्टम है वहां पे सिग्मा एक्स सिग्मा 1 है, सिग्मा वाई सिग्मा 2 है. इन दिस केस सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश भी आएगा. सिग्मा वाई डैश के लिए क्या करना है, सिग्मा वाई डैश के लिए कुछ नहीं करना है, थीटा को क्या करना है थीटा प्लस 90 डिग्री पुट कर देना. तो वहां से सिग्मा वाई डैश आ जाएगा, that is equals to sigma 1 plus sigma 2/2 minus sigma 1 minus sigma 2/2 cos 2 theta. And the shear stress will be equals to tau xy dash. Shear stress will be equals to minus of sigma 1 minus sigma 2/2 sin 2 theta. Sin 2 theta. ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ गई एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यूज आ गई एट एनी एंगल थीटा व्हेन यू हैव बीन गिवन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. ठीक है. दिस इज द सेकंड केस का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यूज गिवन. ठीक है. चलिए अब मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस तो आ गए. अब मुझे मान लीजिए मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना, मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो क्या करूंगा मैं डिफरेंशिएट कर देना टाउ एक्स वाई डैश को डिफरेंशिएट कर दूंगा. ठीक है. डिफरेंशिएट करके 0 कर दूंगा. तो जो मेरे एंगल्स निकल के आएंगे फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस for maximum shear stress I have to differentiate the tau value and put it 0. तो वहां से थीटा निकल के आएगा 45 डिग्री एंड 135 डिग्री. इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल प्लेन्स के 45 डिग्री एंगल पे जो प्लेन होगा वहां पे जो आपका शियर स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा मैक्सिमम आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. थीटा आपका 45 डिग्री आएगा, यहाँ से आपका टाउ मैक्स कितना आ जाएगा, tau max will be equals to values put करेंगे तो that will be sigma 1 minus sigma 2 by, this is the value of maximum shear stress. maximum shear stress की वैल्यू आ गई is the sigma 1 minus sigma 2 by 2. ये आपकी वैल्यूज आ गई of maximum shear stress. ठीक है. मतलब मेरे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी. नाउ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री. जब मैं अपने सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश की वैल्यूज में पुट करूंगा तो वहां से क्या वैल्यू निकल के आएगी कि सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 या फिर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2. एक्स वाई नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2, जो मेरे पास सिग्मा एक्स डैश निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2.
इसका मतलब ये हुआ कि ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा आपका, दैट विल बी द एवरेज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके लिख लीजिए इस पॉइंट को, दैट ऑन द प्लेन ऑफ maximum shear, on the plane of maximum shear, both normal stresses will be of same magnitude। क्योंकि आप सिग्मा x डैश और सिग्मा y डैश के फॉर्मूले में देखेंगे तो दोनों के अंदर cos 2 थीटा है, तो इस वजह से cos थीटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो आपकी दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर both the normal stresses will be of same magnitude, will be of same magnitude, same magnitude का रहेगा, and of same sense, क्योंकि same sign है उसका, and of same sense, and it will be the average of two principal stress, and it will be the average of two principal stresses, average of two principal stresses। ठीक है, जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी इट विल बी एवरेज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। मतलब यहाँ से ये हो गया कहानी। अगर मैं इसको एक पिक्टोरियल में दिखा दूँ आप लोगों को, तो मतलब कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन्स थे, जहाँ पे आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पे अप्लाइड थे। इस प्रिंसिपल प्लेन से जो 45 डिग्री प्लेन पे जो आपका एलिमेंट होगा, वहां पे आपका शियर स्ट्रेस क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये आपका एंगल हो गया 45 डिग्री फॉर एग्जांपल। Here the value of shear stress is tau max, and the value of normal stress will be equals to sigma 1 plus sigma 2 by 2, sigma 1 plus sigma 2 by 2, sigma 1 plus sigma 2 by 2। ये आपकी पूरी कहानी है। जब आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन आपको पता हो, उसके 45 डिग्री पे आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन आएगा, और उस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होंगे वो आपके एवरेज ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे। ठीक है, this is the first part of 2D stresses। The second part is normal stresses आपको given है, ये आपका मोस्ट जनरलाइज्ड पार्ट रहेगा। normal stresses sigma x sigma y and shear stress tau xy is given, tau xy is given। ये आपके पास वैल्यूज किस तरीके से आएंगी इसमें देखिए। अब क्या है केस, मोस्ट जनरलाइज केस है मेरा, जिसके अंदर आपके पास कोई भी वैल्यूज है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई शियर स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, ये भी टाउ एक्स वाई। इन दिस केस जब हम कैलकुलेट करेंगे कंपोनेंट ब्रेक करके किसी भी एंगल थीटा पे, कोई प्लेन है आपके पास, थीटा इज फ्रॉम द वर्टिकल, उस प्लेन के ऊपर जो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई sin 2 theta। This is the value of normal stress at any plane with angle theta from the vertical when a normal stress sigma x sigma y and shear stress tau xy is applied। Most generalized formula, इसके अंदर आपका नॉर्मल स्ट्रेस shear stress दोनों अप्लाइड है, और हमको नॉर्मल स्ट्रेस shear stress दोनों कैलकुलेट करने हैं।
अगर मुझे निकालना हो सिग्मा वाई डैश, क्या करूंगा मैं, थीटा को क्या पुट कर दूंगा, थीटा प्लस 90 डिग्री पुट कर दूंगा, थीटा प्लस 90 डिग्री। यहाँ से सिग्मा वाई डैश निकल के आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा को पुट करेंगे, थीटा को पुट करेंगे थीटा प्लस 90। ठीक है, यहाँ से आपका रहेगा माइनस टाउ एक्स वाई, तो ये भी माइनस आएगा, जब थीटा को थीटा प्लस 90 पुट करेंगे ये आपका माइनस हो जाएगा, दैट विल बी माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई sin 2 थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा वाई डैश की, कुछ नहीं सिग्मा एक्स डैश ध्यान रखना है, वहां सिग्मा वाई डैश ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट विल बी द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कितना आएगा, टाउ एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 sin 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी शियर स्ट्रेस की एट एनी प्लेन थीटा एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। ये तो बात होगी आपकी नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करना है। अब फर्दर इसके अंदर और कौन सी कैलकुलेशन होती है वो देखिए। नाउ मैं आई हैव टू कैलकुलेट प्रिंसिपल प्लेन्स, क्योंकि अभी तो लास्ट केस में मेरे पास प्रिंसिपल प्लेन्स तो अवेलेबल थे, लेकिन इस केस में मेरे को प्रिंसिपल प्लेन्स नहीं पता है। तो फॉर प्रिंसिपल प्लेन्स व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन में कि इन प्रिंसिपल प्लेन्स द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 0, इट विल कैरी 0 शियर स्ट्रेस। मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू पुट टाउ एक्स वाई डैश इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास tan 2 थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंगल, जो भी एंगल आएगा आपका थीटा, तो इस प्लेन पे जो इस एंगल पे जो प्लेन होगा दैट विल बी द प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेसेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, अब इसके अंदर दो प्लेन्स आएंगे, क्योंकि आपका एक प्लेन तो आपका आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, एक प्लेन आपका क्या है उसके परपेंडिकुलर। दैट मींस अगर एक एंगल आपका थीटा p है तो दूसरा एंगल क्या होगा, थीटा p प्लस 90 डिग्री। दो प्लेन्स हो जाएंगे आपके, एक थीटा p पे और एक थीटा p प्लस 90। नाउ अब इस tan 2 थीटा की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करके सिग्मा x और सिग्मा y में पुट करूंगा, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आएंगी वही क्या होंगी, आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी। जब मैं इस tan 2 थीटा का यूज करके cos 2 थीटा और sin 2 थीटा निकाल के इन वैल्यूज में पुट करूंगा, तो आपके पास जो नॉर्मल स्ट्रेस आएंगी वो आपकी क्या होंगी, दैट विल बी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करूं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिंपली आई कैन से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से डिनोट करते हैं। सिग्मा 1 इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 इज द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेशन। प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब यहाँ से एक बात और ध्यान देने वाली है, नंबर ऑफ पॉइंट निकल के आएंगे। अगर मैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 निकालूं तो कितना आएगा, एक बार तो आपको प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 प्लस सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2। यहाँ से मैं ऐड करूंगा तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y। मतलब ये हुआ किसी भी प्लेन पे आप जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आपकी अप्लाइड है दो डायरेक्शन के अंदर, उसका समीशन क्या रहता है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले पे भी ध्यान दें अगर, तो सिग्मा x डैश प्लस सिग्मा y डैश
क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो सिंपली सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल आल्सो इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश। इसका साफ मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ the total value of normal stresses acting on two perpendicular planes will always remain constant। वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा किसी भी प्लेन की बात करें। ठीक है यहाँ तक। नाउ अब ये मेरे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ गए। अब केस 1 ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मुझे पता थी तो मैंने शियर स्ट्रेस निकाला था मैक्सिमम। वो कैसे निकाला था, इन दैट केस द टाउ मैक्स वाज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। सिग्मा 1 भी है सिग्मा 2 भी है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 निकाल लेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy स्क्वायर प्लस टाउ xy स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब इसको पिक्टोरियल व्यू में एक बार इसका समरी देख लेते हैं इसकी। पिक्टोरियल व्यू में इसकी समरी देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से वैल्यूज आई मेरे पास। ये आ गया आपका कोई जो भी आपका यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अप्लाई था along with the shear stress that is equals to tau xy that is equals to tau xy। किसी भी एंगल थीटा पे मुझे निकालना है। अब ये जब एंगल आपका थीटा पी बन गया दैट इज प्रिंसिपल एंगल, तब ये क्या आ गया कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ जाएंगी। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा स्ट्रेस, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। शियर स्ट्रेस 0 होंगी प्रिंसिपल प्लेन्स पे। ये प्रिंसिपल प्लेन्स आ गई, प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री एंगल मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन आ जाएगा। मैं यहाँ से 45 डिग्री मूव कर गया, दिस इज 45 डिग्री। ये जो आपकी प्लेन आई दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। ये आपकी प्लेन आ गई मैक्सिमम शियर की। इन दिस केस द नॉर्मल स्ट्रेसेस वाज द एवरेज ऑफ principal stresses that is sigma 1 plus sigma 2 by 2 and shear stress is tau max। this is your total pictorial view of that we have learned so far। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है यहां तक। चलिए the last case is case 3 that is pure shear। अब मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस ना हो अप्लाई होके मेरे पास मेरे एलिमेंट पे सिर्फ प्योर शियर अप्लाइड है, कुछ नहीं करना है इस केस के अंदर। जो मैंने सेकंड केस में सिग्मा एक्स निकाला था दैट इज उसको 0 पुट करना है, सिग्मा वाई को 0 पुट करना है, सारी वैल्यूज आपके पास निकल के आ जाएंगी। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को 0 पुट करना है तो वहां से सिग्मा एक्स डैश निकल के आएगा टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, सिग्मा वाई डैश निकल के आएगा टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, सॉरी सिग्मा वाई डैश निकल के आएगा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा एंड टाउ एक्स वाई किसी भी एंगल पे निकल के आएगा दैट इज माइनस सॉरी प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। कुछ नहीं करना है, जो मैंने जनरलाइज फॉर्मूला था उसके अंदर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को 0 कर देना है। यहां से जब मैं प्रिंसिपल प्लेन्स निकालूंगा तो आई हैव टू पुट फॉर प्रिंसिपल प्लेन्स क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपल जो मैंने लास्ट स्टेप में किया था दैट इज टाउ एक्स वाई डैश को 0 पुट करना है, टाउ एक्स वाई डैश को 0 पुट करना है। यहाँ से मेरे पास थीटा पी क्या निकल के आ जाएगा 45 डिग्रीज एंड 135 डिग्री सेम, और जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू जाएंगी दैट विल बी इक्वल टू टाउ एक्स वाई एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस टाउ एक्स वाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, मतलब ये हुआ कि इन द केस ऑफ प्योर शियर
द नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन्स, या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी इक्वल्स टू द शियर स्ट्रेसेस अप्लाइड ऑन द एलिमेंट, और जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी वो आपकी अपोजिट इन नेचर होंगी। एक होगा आपका पॉजिटिव टाउ एक्स वाई, एक होगा आपका माइनस टाउ एक्स वाई। पॉजिटिव का मतलब इंटेंसाइल इन नेचर एंड नेगेटिव का मतलब कंप्रेसिव। दैट मींस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव टाउ एक्स वाई एंड नेगेटिव टाउ एक्स वाई। ये आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ नोट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वी राइट सम नोट्स हियर, राइट सम नोट्स हियर। फिर वहां से हम थ्योरी ऑफ फेलियर देखेंगे कि आपका कौन सा एलिमेंट किस तरीके से फेल हो सकता है। नोट हियर इज द ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं आपके, द ब्रिटल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल मतलब जो आप सडन फेलियर दिखाते हैं आपको, दैट विल नॉट elongate much when there is an external load applied on the object. The brittle materials, the brittle materials are strong in compression, are strong in compression। जो आपके ब्रिटल मटेरियल होते हैं that are strong in compression but weak in tension, but weak in tension। कंप्रेशन में स्ट्रांग होते हैं, टेंशन में वीक होते हैं, एंड शियर के अंदर मीडियम होती है, मतलब बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंशन स्ट्रेंथ के बीच में होती है योर शियर स्ट्रेंथ। तो इफ आई से फॉर द ब्रिटल मटेरियल द कंप्रेसिव स्ट्रेस इज मैक्सिमम, then comes the shear strength, then comes the tensile strength. This is the case for the brittle materials। अभी क्यों देख रहे हैं इस चीज को, ये इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि मुझे ब्रिटल मटेरियल और जो डक्टाइल मटेरियल दोनों के लिए मुझे चेक करना है कि आपका फेलियर किस तरीके से होगा, उसकी बात करेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू नोट्स। सेकेंड पॉइंट इज द डक्टाइल मटेरियल्स, the ductile materials are strong in tension, ductile materials are strong in tension and weak in shear, and weak in shear। shear में वो weakest होते हैं and weak in shear। that means tensile strength is highest, then comes the compressive strength, and then comes the shear strength। This is the case when the ductile material is there, that they are strongest in tension, they are weakest in shear। अब ये मैं क्यों बताया आपको, दिस इज बिकॉज आई हैव टू डिस्कस मोड्स ऑफ फेलियर। मतलब ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल दोनों के अंदर अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाऊं या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाऊं तो किस तरीके से फेल होगा, उसका फेलियर प्लेन कैसा आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अब देखिए समझिए इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज मोड्स ऑफ फेलियर। मोड्स ऑफ फेलियर, द फर्स्ट वन इज ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल अंडर टेंशन, अंडर टेंशन। मतलब मेरे पास कोई ब्रिटल मटेरियल है, इट इज अंडर टेंशन, कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये मटेरियल किस तरीके से आपका फेल होगा, ब्रिटल मटेरियल मैंने आपको बताया दैट दे आर वीकेस्ट इन टेंशन, वीकेस्ट होते हैं टेंशन पे। तो वो प्लेन जहां पे आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होगा, क्या ये उस प्लेन पे फेल हो जाएगा। मतलब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल टेंसाइल प्लेन कौन सी होगी, या फिर प्रिंसिपल प्लेन कौन सी होगी जहाँ पे आपका टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा। Now, since only one type of 1D stress is applied, so this is only your principal planes। तो जो इसका failure plane होगा, that will be something like this। It will plane perpendicularly, आपका यहाँ पे failure plane आएगा और आपका मटेरियल जो है इस तरीके से दो पार्ट में शेयर अपार्ट हो जाएगा, इस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एंड द फेलियर प्लेन विल बी परपेंडिकुलर।
द फेलियर प्लेन विल बी परपेंडिकुलर। सेकंड इसी तरीके से चेक करते हैं, तो डक्टाइल मटेरियल अंडर टेंशन। अब इसी तरीके से देखते हैं डक्टाइल मटेरियल कैसे फेल होगा। ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे, ठीक है। कई बार चीजें समझ नहीं आती है कि कैसे फेलियर प्लेन आ रहा है। डक्टाइल मटेरियल्स अंडर टेंशन, डक्टाइल मटेरियल्स अंडर टेंशन। अब देखिए कि मेरे पास कुछ इस तरीके से डक्टाइल मटेरियल है कोई एक, और मैंने इसके अंदर एक टेंसाइल स्ट्रेसेस लगा रखी है, और मुझे देख चेक करना है कि किस प्लेन पे आके, किस एंगल पे आके आपका मटेरियल जो है फेल कर जाएगा। अब मैंने बताया डक्टाइल मटेरियल के लिए द शियर स्ट्रेंथ इज मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्लेन पे आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा उस प्लेन पे आपका मटेरियल क्या कर जाएगा, दैट मटेरियल विल फेल। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, एक ही यहाँ पे फोर्स है, तो दिस इज ओनली योर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मतलब दीज प्लेन्स जो परपेंडिकुलर प्लेन्स है आपकी, वो क्या है, प्रिंसिपल प्लेन्स है। प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री एंगल पे शियर स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बार बार मैंने कैलकुलेट किया है, बार बार हजारों बार थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री निकल के आया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री योर मटेरियल विल फेल, जहां पे आपका शियर स्ट्रेस क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। यहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, दैट विल बी एट 45 डिग्रीज, दैट विल बी एट 45 डिग्रीज। डक्टाइल मटेरियल अंडर टेंसाइल स्ट्रेसेस। इसी तरीके से अगर मुझे ब्रिटल मटेरियल अंडर टेंसाइल निकालना हो, इसी तरीके से मुझे डक्टाइल मटेरियल अंडर टेंशन निकालना, मुझे निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज फेलियर अंडर टॉर्जन। ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज इन द प्रीवियस ईयर, खासकर आपका ईएसई का तो फेवरेट होता है ये, फेलियर अंडर टॉर्जन, फेलियर अंडर टॉर्जन, फेलियर अंडर टॉर्जन। अब क्या होगा, मेरे पास एक मटेरियल है, उसके ऊपर टॉर्जनल स्ट्रेसेस या फिर मैं कहूँ ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाइड है, उसके ऊपर क्या अप्लाइड है, ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाइड। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से एक मटेरियल है, उसके ऊपर मैंने ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर मैंने सर्कुलर एलिमेंट है आपका, ठीक है, सर्कुलर आपका ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन दिस केस आई हैव अप्लाइड अ ट्विस्टिंग मोमेंट T ऑन द ऑब्जेक्ट। मैंने ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर दिया। मैंने आपको बताया था टॉर्जन, जब मैंने स्ट्रेसेस स्टार्ट किया था, देन आई हैव टोल्ड यू व्हेन ट्विस्टिंग मोमेंट इज अप्लाइड शियर स्ट्रेस इज जनरेटेड, प्योर शियर स्ट्रेस इज जनरेटेड। तो अब इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में ये होने वाला है कि जो आपका एलिमेंट है उसके ऊपर आपका प्योर शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएगा, इसके ऊपर प्योर शियर स्ट्रेसेस दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, वो आपका जनरेट हो जाएगा। ध्यान क्लियर है। अब अगर प्योर शियर कंडीशन है, अब अगर प्योर शियर कंडीशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपका डक्टाइल मटेरियल है या फिर ब्रिटल मटेरियल है। तो अगर मेरा मटेरियल डक्टाइल है तो वो कहाँ फेल होगा, आपका वहां फेल होगा जहां पे आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। अब क्योंकि ये प्लेन शियर कंडीशन है, प्लेन शियर कंडीशन में क्या होता है, तो ओनली शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग, ओनली शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग। दैट मीन्स जो ये आपका प्लेन होगा, दिस प्लेन, दिस पर्टिकुलर प्लेन, this particular plane is the plane of failure of ductile material, plane of failure of ductile material, plane of failure of ductile material। अब मुझे निकालना है फॉर द ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल को मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपका जो वैल्यू है ऑफ टेंशन वो कहाँ पे आएगी मैक्सिमम। फॉर द केस ऑफ प्योर शियर, जो आपका प्रिंसिपल प्लेन आते हैं, दैट इज एट 45 डिग्री। हमने चेक किया था 45 डिग्री पे आपका प्रिंसिपल प्लेन आया था। तो मतलब ये हुआ
at 45 degrees, at 45 degree, the plane of failure of brittle material निकल के आएगा, brittle material निकल के आएगा, and this failure is also called helical failure, इसको helical failure भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ नहीं है, दो कंसेप्ट हैं, उसी को यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा गया है कि टॉर्जन अप्लाई कर दिया, शियर अप्लाई कर दिया, मैंने टेंशन अप्लाई कर दिया, तो किस तरीके से आपका फेलियर प्लेन दिखेगा मुझे वो मुझे बताना है। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? यहाँ तक पढ़ने क्लियर हो गए? ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि किस तरीके से आपके नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस आते हैं एट द एनी प्लेन्स। ठीक है, तो आपका जो ग्राफिकल मेथड, सॉरी जो आपका न्यूमेरिकल मेथड या फिर एनालिटिकल मेथड था, दैट इज फिनिश्ड। ठीक है, इसमें आपको और कुछ नहीं है, मेन आपको याद रखना है सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश फॉर द मोस्ट जनरलाइज्ड केस, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो प्लेन आएंगी उसके एंगल की थीटा की वैल्यू वो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री एंगल पे आपका क्या आएगा, टाउ मैक्स आएगा, वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एंड एट द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस द नॉर्मल स्ट्रेस इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय। ये सारी कहानी है, शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, एज फार एज एनी एग्जाम्स इज कंसीडर्ड, एसएससी के अंदर ट्रेंड ये हो रहा है कि आजकल इन चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्या था कि इन चैप्टर से क्वेश्चन कम आते थे, बट नाउ दे आर गोइंग फॉर दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स आल्सो। तो हमको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, चाहे एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, कंसेप्ट समझ लीजिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आई विल बी देयर विद यू, आई विल हेल्प यू आउट इन द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, ये डाउट है मुझे, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, एनीथिंग यू हैव रिगार्डिंग जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल, दैट इज अविनाश कुमार झा, AVINASHKUMARJHA, अविनाश कुमार झा। ठीक है, अविनाश कुमार झा आप सर्च कर सकते हैं मुझे फेसबुक पे, और वहां पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी डाउट आएगा आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, clear है यहाँ तक? And yes, if you have any doubts, you can ask me in the comment section also. You can message me. And yes, the most important point which I will conclude is कि जो भी यहाँ बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, please 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 share it with your friends, क्योंकि sharing is caring first thing. The second thing is try to understand the concepts with each other. समझिए, शेयर कीजिए, इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी, आप समझ के जाइए और वहां बताइए कि ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तुमको नहीं पता है मैं तो बताता हूँ, जितना ज्यादा आप लोगों को बताएंगे, डिस्कस करेंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू आल्सो, और जो आपका बेनिफिट जिसको बता रहे हैं ऑब्वियसली वो भी बेनिफिटेड होगा इस चीज से। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड यस, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट इज अनअकैडमी SSC JEE। ज्वाइन अवर टेलीग्राम पेज, ज्वाइन अवर फेसबुक पेज, जहाँ पे आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है, सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दी। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन द फेसबुक आईडी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? कल हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड की। विल स्टार्ट द ग्राफिकल मेथड टुमारो, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यूजिंग ग्राफिकल मेथड या फिर मोहर सर्कल मेथड को यूज करके किस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है, तो क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको बढ़िया तरीके से वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डाउट्स इन द मोहर सर्कल मेथड। ठीक है, मुझे भी रहते थे, बट इवेंचुअली हमने पढ़ा के हमने इसको सीख लिया, एंड आई नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, और मैं आपको इजी स्टेप्स में आराम से बताऊंगा कि आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है। ग्राफिकल मेथड के बाद आपको बचेगा स्ट्रेन रोजेट्स, एंड दैट विल बी फिनिश्ड, चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ठीक है, इन नेक्स्ट 1 and 2 क्लासेस वी विल फिनिश दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, आई विल write down the questions, you have to solve those questions and I will help you out in the solution. Clear है? Should we finish the class? Give me thumbs up clearly फटाफट से। चलिए, thank you very much for joining, have a good day ahead। ठीक है, I hope आप लोग सभी तैयारी कर रहे होंगे, and take care of yourselves। ठीक है, keep revising, keep practicing, thank you very much for joining।